here you can see that picture. That picture is taken in front of Parliament House, and that's where a whole bunch of opposition members of Parliament were just standing there talking about certain issues, and we were just locked up and put in jail. And that's happened 3 or 4 times, right? And it's happened relatively violently. That's just an example. And we've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. So you get a sense of what is going on. अपनी इस स्पीच को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वायनाड से सांसद और कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सीधे मोदी सरकार पर हमला बोला है। यहाँ वो लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी मुद्दों पर छात्रों से बात करने पहुँचे हैं, जहाँ राहुल गांधी ने देश की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। साथ ही भारत में उनकी जासूसी किए जाने की बात भी कही। About it is that Indian democracy is a public good, okay? Because it is by far the biggest democracy. At least 50% of people who live in a democratic space live in India, and so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet, right? Can we do the next slide? So that's what I described: capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone, because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people when you have this type. हालांकि इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब कांग्रेस नेता ने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ भी की। राहुल से जब मोदी सरकार की अच्छी नीतियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उज्ज्वला योजना और जनधन योजना का जिक्र किया, लेकिन फिर भी उन्होंने सरकार की और कई नीतियों का जिक्र करते हुए सरकार पर सवाल उठाए। I mean, I could think about it and say, yeah, okay, maybe that policy that he's done is not a bad policy, right? Maybe giving ladies gas cylinders or giving people bank accounts is not a bad thing, it's a good thing. But that sort of misses the point, right? Because in my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. So I'm not too bothered about 2 or 3 good policies that he's doing if he's blowing my country to smithereens or our country to smithereens, right? And I think that's what he's doing. I think he is imposing an idea on India that India cannot absorb. वहीं कैम्ब्रिज में दी अपनी इस स्पीच के बाद राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की मंशा पर सवाल उठाते हुए विदेशी धरती पर देश को बार बार बदनाम करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही पेगासस मामले में राहुल पर पलटवार भी किया, साथ ही पूछा है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। पेगासस पे
राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश जाकर भारत सरकार और भारत के आंतरिक मुद्दों को उठाया है। इससे पहले भी वो कई बार विदेशी धरती से भारत सरकार की आलोचना कर चुके हैं। एक बार तो उन्होंने भारत की तुलना पाकिस्तान से कर दी थी। वहीं मई 2022 में भी राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे। यहाँ पर उन्हें आइडियाज फॉर इंडिया विषय पर बोलना था। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार देश की संवैधानिक संस्थाओं जैसे संसद और चुनाव आयोग को अपना काम नहीं करने दे रहे हैं। उस वक्त भी बीजेपी ने उनके बयान पर सवाल उठाते हुए ऐतराज जाहिर किया था। वहीं अब एक बार फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत सरकार पर सवाल उठाने के बाद राहुल गांधी को लेकर बवाल शुरू हो गया है और बीजेपी की ओर से राहुल पर चौतरफा सवाल दागे जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी अपने लोकप्रिय नेता और सांसद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आ रही है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।